हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। स्वागत है आप लोग का। स्पीकर लेके आइए। स्पीकर स्पीकर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। और आज निमाई साहब जी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसके कारण वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे। बट आप लोग का भक्तों का उत्साह इतना है, हर सैटरडे भर भर के भक्त लोग एलुमिनी प्रोग्राम में ज्वाइन हो रहे, इसलिए सोचा कि इसको खंडित नहीं करते हैं। आप लोग का इतना संग प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए फिर आज हम सब मिलकर रीडिंग करेंगे प्रपाद लीलामृत को। जहाँ पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट अ मिनट।
ये आई हैव डन द नेसेसरी सेटिंग। ओके, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन इंडिया 1896 से 1965, शिल प्रभुपाद लीलामृत, चैप्टर 11, द ड्रीम कम ट्रू। तो प्रभु जी ने यहाँ तक पढ़ा था शायद ना। Bhaktivedanta Swami went to the major libraries, universities, and schools in Delhi, where the librarians found him calm and quiet, noble and polite, scholarly, with a specific glow in him. Traveling on foot, he visited school administration office throughout Delhi and placed copies in more than 40 schools in the Delhi area. The Ministry of Education, which has previously denied him assistance, placed an order for 50 copies for selected universities and institutional libraries throughout India. The ministry paid him 600 rupees plus packing and postage charges, and Bhaktivedanta Swami mailed the books to the designated libraries. The US Embassy purchased 18 copies to be distributed in America through the Library of Congress. The institutions sales were brisk, but then sales followed. As the only agent, Bhaktivedanta Swami was now spending hours just to sell few copies. He was eager to print the second volume, yet until enough money came from the first, he could not print. In the meantime, he continued translating and writing purports. Writing so many volumes was a huge task that would take many years, and at his present rate, with sales so slow, he would not be able to complete the work in his lifetime. Although there were many who took part in the production of the book, and still others who became customers, only Bhaktivedanta Swami deeply experienced the success and failure of the venture. It was his project, and he was responsible. No one was eager to see him writing prolifically, and no one demanded that it be printed. Even when the sales slowed to a trickle, the managers of OK Press were not distressed. They would give him the balance of his books only when he paid for them. And since it was also he who had the burden of hiring OK Press to print a second volume, the pressure was on him to go out and sell as many copies as the first volume as possible. For Hanuman Prasad Poddar, the volume had been sometimes something to admire in passing. For Hitsaran Sharma, it had been something he had tended to after his day's work for Mr. Dalmia. For the boy who lived at Chippiwada, the book had meant a few errands. For the paper dealer, it had meant for small orders. For Dr. Radhakrishnan, it had been but the slightest, soon forgotten matter in a life crammed with national politics and Hindu philosophizing. But Bhaktivedanta Swami, by his full engagement in production, the Bhagavatam felt bliss and assurance that Krishna was pleased. He did not, however, intend for the Bhagavatam to be his private affair. It was the sorely needed medicine for the ills of Kali Yuga, and it was not possible for only one man to administer it. Yet he was alone, and he felt exclusively pleasure and satisfaction in serving his Guru and Lord Krishna. Thus his transcendental frustration and pleasure mingled, his will strengthened, and he continued alone. So we can learn very nice lesson from this pastime of Srila Prabhupada, where see how much struggle he is doing alone. So I was hearing one lecture where Prabhuji is mentioning what हमें करना क्या है बुक डिसीजन करने के लिए। हमें बुक्स मिल जाती है, पैसे भी देना नहीं पड़ता पहले, अब जस्ट ऑर्डर करो पीबीटी को, बुक्स भेज दो,
आपके पते पे भेज देंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुरियर चार्जेस भी बीबीटी बेयर करता है कभी कभी। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गाड़ी में जाना है। कोई मंदिर में देखिए, प्रैक्टिकली देखिए। आज तो प्रभुपाद जी के समय तो फंड की कमी थी, प्रभुपाद जी को अभी वो प्रिंटर को लक्ष्मी देने के लिए लक्ष्मी नहीं है। पर आज देखिए इस्कॉन आज के जगत में, हम वो गीता लाइफ के लड़कों को बुलाते हैं मंदिर में कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। तो दिन के वो जाके 2 गीता बांट के आते, कितना 2 गीता, 7-8 लोग मिलके जाते हैं, 2-3 गीता, कभी 4-5 गीता करके आते हैं। तो अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो घाटे का सौदा है। क्योंकि 4-5 गीता बांट के कितने उन्होंने कमाई करके दी, कुछ 10-20 का मार्जिन पड़ता होगा किसी बुक्स का, तो 100 रुपया कमा के दिया, कितना ना। फिर 10 लोग ऑटो से गए, तो हर आदमी का 50 रुपया खर्चा करके आए, 500 रुपये का तो जाने का, 500 रुपये का आने का। सुबह आए, प्रसाद खाया दबा के, शाम को गए प्रसाद खाए, है ना। और एक फुल टाइम ब्रह्मचारी उनकी सेवा में पूरा दिन दिया, उसका 500 रुपया पकड़ लो। तो 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट में है, और 100 रुपये का कमाई करके दिया। तो हाउ मच इस्कॉन इज ऑफरिंग टू द सोसाइटी नाउ। लोग सोचते हैं कि ये लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। कभी कभी किस स्कूलों में जाते हैं हम, लोग बोलते हैं, कितना देखो इनका कितना धंधा कर रहे हैं ना, इनका धंधा चल रहा है। बट हाउ, उनके पीछे पता नहीं, उनको पता नहीं कि हाउ मच दिस पीपल आर वर्किंग हार्ड। और ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कि प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। प्रभुपाद जी ने 3rd क्लास ट्रेन में जाते थे। कौन से ट्रेन में? 3rd क्लास। थर्ड भी क्लास नहीं, 4th क्लास। रीजन क्या था 4th क्लास जाने के लिए? कि कुछ पैसा बचेगा तो उस पैसे का एक्स्ट्रा पेपर खरीद लेंगे। और जब पेपर भी खरीदते थे प्रभुपाद जी, उस पेपर को ना इस पे सर पे लेके जाते थे। किसके लिए सर पे लेके जाते थे? ऑटो नहीं करते थे, टांगा नहीं करते थे, रिक्शा नहीं करते थे। सोचते थे कि टांगे का 4-5 पैसा बच जाएगा तो और एक गठड़ा पेपर आ जाएगा, जिससे मैं ज्यादा बुक करूँ। और कई बार तो प्रभुपाद जी क्या नहीं करते थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे। वो ओके प्रेस का मालिक बोलता था, कुछ खाया है हमें जी, कुछ खा के आए क्या? ओके, नहीं खाएगा, ठीक है। अपने पत्नी को बोला था कुछ खिलाओ इनको पहले। तो सब कुछ प्रभुपाद जी करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, पेपर प्रिंटिंग करते थे, लेके थे, और बाद में बांटते भी थे। और बाद में फिर लक्ष्मी जमा करते थे। हमारे लिए तो सब कुछ रेडी है ना? मंदिर में आ जाओगे बुक डिशन करने के लिए, तो प्रसादी में दे देंगे। और आपको आने के बाद इस्कॉन जू में फिस्ट मिलता है 9 बजे, पूरा फुल फिस्ट रहता है, 7 कोर आइटम रहते हैं उसमें। तो व्हाट व्हाट इज देयर, जस्ट अवर डिजायर। हमें ये प्रभुपाद जी से इंस्पिरेशन लेना है कि हमें बाहर निकलना है, बांटना है। बस इतना करेंगे तो पूरी गुरु शिष्य परंपरा की मर्जी हमारे पास आ जाएगी। और देयरफॉर ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। ठीक है ना। मेरे साथ, मेरे सामने यहाँ के सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, वर्धा में सेवा कर रहे हैं। इस ग्रेस सुंदर हरि प्रभु, इस ग्रेस, आपको मालूम नहीं होगा, सुंदर हरि प्रभु शुभम प्रभु पहले के अवसारी के। ठीक है। फिर हिज ग्रेस विवेक प्रभु, हिज ग्रेस ऋषिकेश प्रभु, हिज ग्रेस नारायण प्रभु, हिज ग्रेस आशीष प्रभु, अभी 2 दिन पहले आगमन हुआ है। हिज ग्रेस गजेंद्र प्रभु यहाँ पे है। ये लोग अभी मेहनत कर रहे हैं पूरे 1 महीने से लगभग, और प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस है प्रभु जी, पीपल आर वेटिंग, ये लोग कब आएंगे। वेटिंग, दे आर वेटिंग प्रैक्टिकली। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दे आर वेटिंग। ये लोग आएंगे, कुछ करेंगे समाज के लिए, हमारे लिए ना। वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे में उनके चेहरे में सा एक चांद खिल जाता है उनके चेहरे में। हम डरते किसी स्कूल में घुसने के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हिंगन घाट में मिलिट्री स्कूल है, इंडियन मिलिट्री स्कूल। वहां पे ऐसे बंदूक लेके खड़े रहते वो लोग गेट पे ना से, और 4-5 पहरेदारी करते रहे। बड़ा बड़ा गेट है, नो ट्रेस पासिंग करके ना, ऐसा लिखा है, उड़ा देंगे करके।
मिलिट्री का ट्रेनिंग एरिया है। हम 6 दिन से जा रहे थे उस हिंगन घाट में, सोच रहे थे भाई, पुलगांव, सॉरी पुलगांव, पुलगांव, हिंगन घाट नहीं, पुलगांव। तो सोच रहे थे कि जाए नहीं जाए, उड़ा देंगे फालतू में, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार। ठीक है ना। डर रहे थे, डर रहे थे। एक दिन ऐसा बोले, पूछने में क्या आता है, जैसे 2-3 लोग को भेजा, जाओ पूछ के आओ, अंदर स्कूल है एक मिलिट्री स्कूल, में कुछ जा सकते क्या हम? बोले कोई नहीं, जा सकते जाओ। फिर दूसरे दिन हिम्मत लगा के गए, क्या होता है पता नहीं। तो वो तो इतना प्रिंसिपल हैप्पी हो गए, वो वेट ही कर रहा था कोई आए करके हमारे इधर। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जब बाहर जाएंगे। ये क्यों हो रहा है मालूम है क्या? हमने कोई हम कोई टोपचंद नहीं है, हमारा कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी की कृपा है। जो स्ट्रगल प्रभुपाद जी ने किया है, गुरु शिष्य परंपरा ने जो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल का रिजल्ट भी जो भगवान दे रहे हैं, सारे गुरु शिष्य परंपरा पे अपनी कृपा शावर कर रहे हैं। हम हमको उसकी बूंदे मिल जाती है, इसलिए हम जाके हमको आसानी से हो जाता है सब कुछ। हमें लगता है कि देखो कितना मैंने प्रभाव किया, बराबर। ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे स्कूलों में जहाँ पे डर रहे थे हम जाने का, वहां पे तो सिक्योरिटी गार्ड हमको ऐसे ना इज्जत नहीं दे रहा था। पर बाद में जाने के बाद हम उधर, दे वर वेटिंग, प्रिंसिपल वर वेटिंग, मतलब कहाँ थे आप, कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए इतने दिनों से, ऐसे कर। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी के ना इतना स्ट्रगल किया है प्रभुपाद जी ने कि ये है ना, करुणा है प्रभुपाद जी की। आगे बढ़ते हैं। या द ड्रीम कम ट्रू करके चैप्टर है ना, उसमें हम पढ़ रहे हैं। ही स्पिरिचुअल मास्टर, the previous spiritual master, and the Vedic scripture all assured him that he was right. See, coming, it is coming. If a person got a copy of the Bhagavatam and read even one page, he, okay, पढ़िए प्रो जी, कुछ भक्त लोग पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा? बहुत सारे भक्त आए हमारे। एक भक्त पढ़िए प्रो जी। मैं पढ़ता हूँ. आप पढ़िए। If a person got a copy of the Bhagavatam and read even one page, he might decide to take part in Lord Chaitanya movement. If a person seriously read the book, he would be convinced about spiritual life. The more this book could be distributed, the more the people could understand Krishna consciousness. And if they understand Krishna consciousness, they would become liberated from all problems. Book selling was real preaching. Bhakti Siddhanta Saraswati Had wanted it. had wanted it, even at the neglect of constructing temple or making followers. Who could preach as well as Srimad Bhagavatam? Certainly, whoever spent 16 rupees for a book would also take the time at least to look at it. In the month that followed, Bhaktivedanta Swami received more favorable reviews. The prestigious Adyar Library Bulletin gives a full review. Nothing. The editor's vast and deep study of subject and concluding further volumes of this publication are eagerly awaited. एक His scholarly court brothers also wrote their appreciations. Swami Bon Maharaj, rector of the Institute of Oriental Philosophy in Vrindavan, wrote, I have nothing but admiration for my bold and practical venture. If you could be able to complete the whole work, you will render a very great service to the cause of the Prabhupada Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Sri Chaitanya Mahaprabhu and the country also. Do it and rest assured there will be no scarcity of resources. Bhakti Saranga Maharaj wrote a full review in his Sajjan Tosani. We expect that this particular English version of Srimad Bhagavatam will be widely read and thereby spiritual poverty of people in general may be removed forever. At a time when we need it very greatly, Srimad Bhakti Vedanta Swami has given us the right thing.
We recommend this publication for everyone's serious study. Sri Vishwanath Das, Governor of Uttar Pradesh, commented the volume to all thoughtful pupils and economic review praised the author for attempting a tremendous task. At a time when not only the people of India but those of the West need the chast- chastening chastening quality of love and truth in the corrupting atmosphere of hate and hypocrisy, a work like this will have uplifting and corrective influence. Dr. Zakir Hussain, Vice President of India, wrote, I have read your book Srimad Bhagavatam with a great interest and much profit. I thank you again for the kind thought which must have prompted you to present it to me. The favorable review, although Bhakti Siddhanta Swami could not pay the printer with them, included a serious response. The book was valuable, and subsequently volumes would earn the serious even more respect. By Krishna's grace, Bhakti Vedanta Swami had already completed many of the translation and purport for the volume 2. Even in the last week of the printing the first volume, he had been writing day and night for the second volume. It was glorification of the Supreme Lord, Krishna, and therefore it would require many volumes. He felt impelled to praise Krishna and describe him in the more and more volumes. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had said that the praises of the world could not print fast enough the glories of Krishna and the spiritual world that were being received at every moment by pure devotee. Bhaktivedanta Swami decided to return to Vrindavan for several months of intensive writing on volume 2. This was his real business at Radha Damodar temple. Vrindavan was the best place for writing transcendental literature. That had already been demonstrated by the Vaishnavacharya of the past. Living in the simple ease, taking little rest and food, he continually translated the verses and composed his Bhaktivedanta purports for volume 2. After a few months after amassing enough manuscript page, he would return to Delhi and once again enter the world of publishing. See how Prabhupada was doing, na? Sadhana, seva. Sadhana, seva. How nice balance, है ना? ब्रेक लिया, वृंदावन गए, अपना शेड्यूल ठीक किया, राइटिंग वर्क किया, इंटेंस स्टडी किया भागवत का। प्रभुपाद जी के लिए राइटिंग में इंटेंस स्टडी, क्योंकि प्रभुपाद सिर्फ लिखते नहीं थे, कई आचार्य की टीकाएं सामने रखते थे, पूरा उसको डीपली पढ़ते थे, देन ही यूज्ड टू ट्रांसलेट। तो उनके लिए तो स्टडी हो गया बराबर। साधना, दीप साधना, रात दिन और फिर साधना से उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली और फिर से आके सेवा। यही हमारा है सार, पापा जी ने हमको सिखाया है, हमें वैसे ही करना चाहिए। साधना के समय बहुत जोरदार साधना करना चाहिए, और जब प्रचार का बारी आए तो फिर प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ हमको लेक्चर, लैब एट होम एंड लाइन एट आउटसाइड। बाहर प्रचार में फिर करना चाहिए, तो वो बचाना चाहिए, फिर घर में लैम्प लोमड़ी के जैसे रहना चाहिए और अपना साधना करना चाहिए बैठ के। अपने को अमानी नामान दिन कीर्तनीय सुधारी, ये भाव, ये प्रभुपाद जी हमको बहुत प्रेरणा देते हैं कि प्रभुपाद जी का हर एक मोमेंट, बीइंग अ प्योर डिवोटी, उनके हर एक मोमेंट को कैप्चर किया जा सकता है, और उनके हर एक मोमेंट से हमको सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं। हाउ इज मेकिंग
एवरीथिंग कृष्ण कॉन्शियस। और फिर हमारे आचार्यों ने सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि ये साधना करो और सेवा करो, और दिखाए कैसे साधना करनी है एट फर्स्ट प्लेस, एंड सेवा करनी है एट फर्स्ट प्लेस। दोनों को सेम प्रायोरिटी है, नॉट लाइक जस्ट साधना साधना साधना, नहीं तो सेवा सेवा सेवा, बैलेंस। इसलिए आप सभी भक्त भी जो यहाँ पे है, आ रहे हैं रेगुलरली, जब तक हमारे पास दोनों टारगेट नहीं लेंगे हम, कि मुझे साधना करना है, कुछ क्या बोलते, कुछ आगे का एक ये नहीं रखेंगे, गोल नहीं रखेंगे, तो साधना नहीं कर पाएंगे। और कुछ सेवा का गोल नहीं रखेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमारे पास है टारगेट है, यहाँ पे 6,000 गीता लेके आए, 6,500 गीता हमारे पास। तो हमारे पास टारगेट है अभी भाई 12 तारीख की, और पहले अभी बची हुई जो 1,500 1,700 गीता है वो निकालनी है कैसे भी। तो अभी जनरली ऑन एन एवरेज हमारा एक हफ्ते में हम 1,000 गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी 1,200 कभी 1,000 रुपये। और अभी एक हफ्ता बचा है अभी बस। टारगेट है बराबर है कि नहीं? तो ऐसे ही साधना का टारगेट होना चाहिए। अभी सैटरडे संडे है, साधना का टारगेट, अभी मेरा रीडिंग बाकी है, ये बाकी है। तो आप भक्तों को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो साधना कार्ड बनाया है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सुंदर भक्तों, बहुत सारे भक्तों वहाँ पे रोज मार्क कर रहे हैं अपने चैंटिंग का समय। दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल। रीडिंग का समय और कितने बजे कितना रीडिंग किया लिख रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। तो हमने जब तक कोई एक किसी को रिस्पांस देना है, हमको रिस्पांस एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो क्या है, एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स। जब तक कोई हमें पूछता नहीं, पूछने वाला नहीं रहता कि क्या है, क्या चल रहा है भाई तुम्हारे जीवन में, तब तक फिर हम वो करते नहीं है। तो इसलिए आप भक्तों की प्रेरणा से अभी सभी भक्त एक दूसरे को प्रेरणा देने यहाँ पे एलुमिनी में हम सब लोग जमा हो रहे हैं। तो अभी एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए। आज महेश राजगुरे प्रभु जी भी आए, स्वागत है उनका। कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो एक दूसरे को हमने क्या देना चाहिए, उत्साह देना चाहिए साधना करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ आप भक्त लोग, ये जो एलुमनी ग्रुप में है, एक दूसरे के प्रति अभी बहुत ऐसे मित्र होने चाहिए आप लोग। ऐसे ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं होने चाहिए हमारे सैटरडे सैटरडे बस। आप अपने अपने पार्टनर ढूंढ लो किसी को, जैसे मान लो किरण बंसोड़े प्रभु है, जो जलगांव के पास आउट है, वो किसी एक भक्त को जो जलगांव के होंगे, जैसे केवल प्रभु जलगांव के हैं, उनके साथ मैत्री होनी चाहिए उनकी। और उन्हें बोलना चाहिए फिर संडे को हम क्या एक साथ मिलके 1 घंटा पढ़ाई कर ले, क्या रीडिंग कर ले, फोन पे, जूम पे या गूगल मीट पे। तो ऐसे करके जब हम एक दूसरे को साधना का रिस्पॉन्स लेंगे, एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एक दूसरे की साधना की, तब जाके फिर हम रोज स्ट्रांग भक्त रहेंगे गुरु जी, किधर भी रहेंगे। जब हम शास्त्रों से जुड़े रहते हैं तो हमारा शास्त्र चक्षु डेवलप होता है। तो जब शास्त्र चक्षु डेवलप होता है तो दुनिया को देखने का तरीका हम सीख पाते हैं, एक अलग तरीके से देखते हैं दुनिया को, विद द आईज ऑफ स्क्रिप्चर देखते हैं। और जब वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है ना, दुनिया को शास्त्रों के नजर से देखने की जब दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा जीवन बदल जाता है। यू विल बी सीइंग द मिजरीज एज अ मिजरीज, you will be able to see the illusion as a illusion, and you will able to trace the happiness which is in this material world also. You can able to see it. Yeah, some happiness is there, which is the blessing of Krishna. You can able to clearly see it. और उसके लिए फिर शास्त्र चक्षु डेवलप करना बहुत जरूरी है। शास्त्र चक्षु कैसे होता है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, जो चतुश्लोकी भागवतम भगवद गीता है, कल में किसी श्लोक, तो 4 श्लोक भगवद गीता के, चतुर्श्लोकी भगवद गीता क्या है? 10:9 से 12 तक पूछे। हाँ, बोलिए प्रभु जी। देखो हमारे सबसे जबरदस्त जिनका
रीडिंग हियरिंग चलता है हमारे जगन्नाथ का, उसका प्रभाव भी दिखता है। बच्चों को कितना वो पकड़ पकड़ के वैल्यू एजुकेशन के लिए कितना प्रोजी मेहनत कर रहे हैं। यस प्रोजी, श्लोक बोलिए उसमें। हाँ। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अंत परस्परम, क्या बोला है? मैं श्लोक ओपन करता हूं, आप लोग को दिखाता हूँ उसका वर्ड मीनिंग। क्या श्लोक बोला तुझे? नंबर 9, 10, 9। 10। यस, दिख रहा है ना आप लोग का भी? ये जो श्लोक है इसमें भगवान बोलते हैं क्या? मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयं च मां नित्यं रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसे होता है भक्ति में हमारा प्रोग्रेस? मच्चित्ता मतगत प्राणा, मेरे में चित्त लगाओ, तो अपना प्राण बना लो। मतगत प्राण, कैसे? बोधयंत परस्परम, परस्परम से एक दूसरे के साथ। बोधयंत, बोधयंत का क्या मतलब है? प्रीचिंग, एक दूसरे के बारे में डिस्कस करो, मेरे बारे में डिस्कस करो बराबर है। ऐसे करके एक दूसरे के साथ क्या करो? कथयंतस्य माम नित्यम, मेरे बारे में क्या करो? अमांग देव से, परस्परम में अमांग देव से, अपने एक दूसरे के साथ कथयंतम बातें करो, तो मेरे बारे में, माम अबाउट मी, नित्यम हमेशा। और इससे क्या होगा? तुष्यंती च रमंती च, आप लोग को तुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने जीवन में खुद के। रमंती च, और जो ट्रांसेंडेंटल आनंद ढूंढ रहे हैं, लीज ढूंढ रहे हैं, आध्यात्मिक सुख जो ढूंढ रहे हैं, वो भी मिलेगा। तो ये हम भक्तों ने एक साथ आके करना है गुरु जी। जब हम जस्ट ऑफिशियली हम एक एल्यूमिनी बन के रहेंगे कि चलो ऑफिशियली एक सैटरडे को आ रहे हैं, उससे तो प्रोग्रेस होगा ही गुरु जी। ऑलरेडी आप इतने सारे सीनियर भक्त हैं यहाँ पे, कोई नया भक्त तो है नहीं। बट जो हम इंडिविजुअल एक एक जगह पे है ना, अपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ कुछ ड्यूटीज के ऊपर, तो कुछ कुछ ड्यूटीज के ऊपर अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और किस किस कुछ कुछ भक्तों को दोनों जिम्मेदारियां है, पारिवारिक एंड प्रोफेशनल। उसमें फिर ये तुष्यंती से रमनती से होना बहुत जरूरी है कि सेटिस्फैक्शन रहे हमारे ओन जीवन में, और हमें कुछ भक्ति करने का जो आनंद है उसकी अनुभूति हो। उसके लिए कथयंत माम नित्यम जरूरी है। कथा करें हम एक दूसरे के साथ, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे भक्तों को पकड़े हुए। इसलिए आप भक्तों से विनती है कि ये जो ग्रुप में हम डिवोटीज है, इसमें एक ऑफिशियल रिलेशनशिप ना हो, कि एक लविंग रिलेशनशिप होना चाहिए। भक्त लोगों ने ऑफ द स्टेज नहीं, सॉरी ऑन द स्टेज नहीं, यहाँ पे तो करना ही है, हम साथ में आना है, एसोसिएशन देना है, और ऑफ द स्टेज हमारा इतना संबंध होना चाहिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ फोन करके, प्रो जी आप फ्री है क्या, आज रीडिंग कर ले क्या रविवार के दिन, एक दूसरे को टाइम निकालना चाहिए, है ना। ऐसे करके हमने एक दूसरे के साथ रीडिंग हियरिंग में समय बिताएंगे। अब देखोगे, आप भक्त ही है 10-12 जो 15 भक्त आते हैं रेगुलरली, आप भक्तों के प्रेम इतना संबंध अच्छा हो जाएगा, और एक दूसरे को रीडिंग हियरिंग करने से आप लोग को इतना आनंद की अनुभूति होगी। और आप किधर भी हो, कोई पटना में है, कोई पुणे में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, तो ये आप लोग भले ही डिस्टेंसेस से बहुत दूर दूर है, फिर भी आप एक दूसरे के भक्ति का पोषण करें, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए आगे का श्लोक भी बहुत जबरदस्त है, भगवान बोलते हैं फिर ऐसा जो करेंगे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजती प्रीति पूर्वकम। ऐसा भक्त जो तेषाम ऐसा करेंगे ना, तेषाम इज अनटू देम, जो ऐसा करेंगे, ऑलवेज एंगेज, सतत जो युक्ता नाम, मेरे भक्ति में हमेशा युक्त रहेंगे, भजताम इन रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, हमेशा कैसे? प्रीति पूर्वकम, एक दूसरे के साथ प्रीति पूर्वकम, जो ऐसा करेंगे। भगवान देखो ये 4 श्लोक में पूरा भगवदगीता का सार दे रहे हैं। तेषाम, जो पहली बात बोली है मैंने परस्परम बोधियंतम परस्परम की, कि जो भक्त ऐसा करेंगे, तेषाम सतत युक्ता नाम,
हमेशा युक्त रहेंगे, इसमें भजताम, भक्ति करेंगे मिलकर, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। फिर भगवान देखेंगे जब भक्तों के साथ में हमारा सेटलमेंट बराबर चल रहा है, भक्तों के साथ संग चल रहा है, भक्तों के साथ बोधियंत परस्परम हो रहा है, और इसके लिए हम एंडेवर कर रहे हैं सतत, सतत, नॉट जस्ट ऑफिशियल, सतत, वेनेवर वी गेट टाइम, तेन ददामी बुद्धि योगम तम, मैं फिर ऐसे लोगों को बुद्धि देता हूँ। कैसी, किस किस बात की बुद्धि देता हूँ मैं, है ना, किस बात की बुद्धि देता हूँ, ये न मामुपयांति थे, फिर ये लोग सब मिलके कैसे मेरे पास आएंगे, मेरे चरण कमलों को कैसे प्राप्त करेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे, इसकी बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। भगवान फिर जिम्मेदारी लेते हैं हमारी। जब हम सब मिलके भक्त हमारी खुद की भक्ति की जिम्मेदारी लेंगे, ये जो एलुमिनी ग्रुप है इसमें सब मिलके रीडिंग हियरिंग, एक दूसरे के भक्ति को सपोर्ट, एक दूसरे की भक्ति कुछ पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम से उसको शेयरिंग करके एक दूसरे को सपोर्ट करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, और खुद का साधना एक दूसरे को ये करना, इम्प्रेस करना दूसरे को। जैसे कोई भक्तों को देख के कि सुबह रोज 8 बजे से माला पहले कर रहा है, दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा मिलती है कि कितना अच्छा भक्त है ये, ऐसे करके एक दूसरे को जो सपोर्ट करेंगे, देन देखिए भगवान फिर अपना काम करते हैं। जब हम हमारा काम करेंगे, भगवान करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। इसके आगे का भी श्लोक बहुत सुंदर है प्रभु जी, 4 श्लोक, 4 बुनियाद है हमारे। फिर क्या होगा, जब ऐसा करेंगे ये भक्त लोग, भगवान बता रहे, मैं तो बुद्धि दे दूंगा उनको आने का, और फिर है ना, फिर एक्चुअली काम चालू हो जाएगा। कैसा काम चालू हो जाएगा, तेषाम एवानुकंपार्थम, जो उनके जीवन में अनुकंपा है, जो स्पेशल मर्सी है, फिर मैं देना चालू करूंगा। जब दो चीजें उन्होंने कर ली, 10.9 और 10.10 जब कर लिया, तो मैं उनके साथ 10.11 करूंगा। क्या करूंगा कि तेषाम एवानुकंपार्थम, अनुकंपा जो है ना, आपने देखा होगा ना, वो बोलते हैं अनुकंपार्था, अनुकंपा के योजना में लगा है। इनके पिताजी पहले ये थे, भक्त थे, हाँ, बड़े, तो किसी कारणवश भगवत धाम चले गए, तभी बाई डिफॉल्ट में वो अनुकंपा किसके ऊपर लागू हो गई अभी, लड़के के ऊपर। वैसे ही हम जब भक्तों के आश्रय में रहते हैं, तो जो भक्तों को अनुकंपा हो रही है भगवान की, तो वो अनुकंपा फिर हमारे ऊपर भी शावर होना चालू हो जाता है। अनुकंपा, अनुकंपा के लाभार्थी हम भी डिसाइड हो जाते हैं फिर, ये अनुकंपा में आ रहा है बराबर है, मीन्स भक्तों के शेल्टर में है ये। तब जाके ये दो चीजें होने के बाद फिर भगवान चालू करते हैं अपना कार्यक्रम। तेषानु अनुकंपार्थम हम अज्ञानतम जन, और जब हमारा फिर अज्ञान है, जो अंधेरा है, इग्नोरेंस है हमारे जीवन में, जो तमोगुण के कारण जो हमारे अंदर ये पूरा हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, और माया के प्रति जो प्रेम है, बहुत अच्छा लगता है माया के प्रति, तब जाके फिर वो भगवान झाड़ू लेते हैं अपने, क्या लेते हैं, झाड़ू खुद। हम अज्ञान जम तम, मैं झाड़ू लेके वो पूरा अज्ञानता को दूर करता हूँ। नाश्यामी आत्मभावस्तु, पूरा खत्म करता हूँ। ज्ञान दीपे न शाश्वता, भास्वता या शाश्वता बोल सकते हैं, ज्ञान दीपे न शाश्वता, एक्चुअली शाश्वता शब्द है, बट वो दैट इज, तो विद द लैम्प ऑफ नॉलेज के अंदर क्या हो जाता है परमानेंटली, फिर वो जो भक्तिमय नॉलेज है, ये भगवदगीता का नॉलेज हमारे अंदर फिर क्या हो जाएगा, चलने लगेगा दीपक की तरह। और फिर जब ज्ञान की अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, तो फिर हमारे चक्षु क्या हो जाएंगे, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से हो जाएगा हमारा। फिर जब दुनिया को देखेंगे तो जी, तो बहुत कंपैशनेट हम भी देखेंगे, फिर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, फिर वो मर्सी बांट पाएंगे, एजेंट बनेंगे फिर। जब हमारे ऊपर एवानु कंफार्टम हो गया है, हमने मर्सी स्वीकार कर ली है, अभी हमारे पास ओवरडोज हो गया मर्सी का, फिर हम मर्सी बांटने के एजेंट बने, फिर जाएंगे बाहर, बाहर निकलेंगे। नहीं तो क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम खुद ही भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं ले पा रहे हैं, या बोधयंत परस्परम नहीं कर रहे हैं, तो शांति से रमंती से नहीं है, और हमारे ऊपर भगवान ने जो 10.10 में बोला है, क्या क्या बोला 10.10 में, है ना, हाँ, बोध क्या ददामी बुद्धि योगम नहीं हुआ है, तो हम ही अंदर कमजोर से भक्त है, हमारे अंदर ही भगवान की कुछ कृपा अभिलाषा हम नहीं देख पा रहे,
कहाँ दूसरे के पास जाएंगे प्रभु जी, और कहाँ दूसरे को हम कृपा दे पाएंगे, एजेंट बन ही नहीं पाएंगे बराबर। लास्ट लोग बहुत स्पेशल है, फिर फाइंड अप कर रहे हैं भगवान। 9, 10, 11, 12, नहीं हो गया, हो गया ना। हाँ, 9, 8, 9, 10। 8, 9, 8, 9, 10, 11 8वां श्लोक है वो। 8वां श्लोक भी बहुत सुंदर भगवान बोलते हैं। शुरुआत करते हैं क्या, अहम हम सर्वप्रथम। पहले क्या, पहले संबंध ध्यान इस्टेब्लिश कर रहे हैं भगवान, कि क्यों मेरी भक्ति करना ये बता रहे हैं। हम, अरे मैं ही हूँ भाई, ना कभी देवी देवताओं के पास मत जाओ, हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे सब कुछ होता है, इसलिए मेरी भक्ति करो, उदा भाव। ऐसे करके पहले खुद को सेट कर रहे हैं पहले, और फिर बाकी चीजें बोल रहे कि ऐसे भक्तों के संग में आओ, मेरे बारे में कथा करो, भोजन तो परस्परम करो, फिर मैं तुमको बुद्धि योगम दूंगा। और फिर ये जब तीन चीजें करोगे तुम, तो फिर 11वें श्लोक में कंक्लूजन दे रहे हैं, दिस इज होल कंप्लीट भगवता है इन 4 श्लोकास। इसलिए हम भक्तों का ये गोल होना चाहिए प्रभु जी, हम जो साथ में आ रहे हैं, साथ में आए, और हम क्या करें, ये करना है हमको, तुष्यंती च रमंती च करना है। तब जाके फिर हम एक्चुअली वो कृपा दूसरे को दे पाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु शिष्य परंपरा इतना अपना खुद साधना में ये थे, स्थिर थे, इसलिए देखिए प्रभुपाद जी कितना दिन रात मेहनत किए दूसरे को बांटने के लिए, दिन रात। ठीक है, पढ़िए, यहाँ से आगे पढ़िए प्रभु जी, कुछ जो पढ़ सकते हैं। कोई भक्त पढ़ सकता है प्रभु जी आप में से? पढ़िए, नवीन नीरज निमाय। दिख रहा है आप लोग को इन वॉल्यूम 1? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप बोल तो रहे, पढ़ तो रहे, बट आपका ऑन भी है, म्यूट, ऐसा नहीं कि म्यूट है, बट ड्यू टू सम अदर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नहीं आई पढ़ एम, रहा। In in पढ़िए volume पढ़िए। one, he had covered the first 6.5 chapter of the first canto. The second canto began on page 365 with the 8 verse of the seventh seventh chapter. Bhaktivedanta Swami wrote in his purport that the Srimad Bhagavatam was meant for Paramhansas, person engaged purely in the self-realization. Yet, he wrote, it work into the depth of the heart of those who may be worldly men. Worldly men are all engaged in the matter of sense gratification. But even such men will also find this Vedic literature a remedial measure for their material diseases. Bhaktivedanta Swami returned to Delhi to raise fund for printing volume 2. When he visited a prospective donor, he would show the man volume 1 and the growing collection of reviews, explaining that he was asking a donation not to support himself but to print this important literature. Although for the first volume he had received no donation equal to the 4,000 rupees he had received from Mr. Podar, an executive in the uh, LNH sugar factory, gave a donation for 500 rupees for volume 2. Bhakti Vedanta Swami had been dissatisfied with the Hit Saran Sarma as a productive supervisor. Although supposedly an expert in the trade, Hit Saran has caused delay, and sometimes he had advised Gautam Sarma without consulting Bhaktivedanta Swami. The work on volume 1 had slowed and even stopped when a job from a cash customer had come up, and Bhaktivedanta Swami had complained that it was Hit Saran fault for not giving money to OK Press on time.
For Volume 2, Bhaktivedanta Swami decided to deal directly with OK Press and supervise the printing himself. He spoke to Gautam Sarma and offered a partial payment. Although the majority of the copies of Volume 1 were still standing on their printing floor, Bhaktivedanta Swami wanted OK Press to begin Volume 2. Gautam Sarma accepted the job. कि आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के लाइफ से कि हमें हमारे पास फ्री के भागवतम सेठ से उसको जाके देना है, बस ले ले भाई, रख तेरे पास लाइब्रेरी से। तो उसमें भी हमको कितना लगता है, अरे हाँ कैसे करेंगे, कैसे टाइम निकालना पड़ेगा बराबर कि नहीं। और यहाँ पे फ्री के भागवतम देना नहीं है, जो भागवतम मैनिफेस्ट ही नहीं है, उसको छापने के लिए प्रभुपाद पहले वॉल्यूम के रिव्यूज लेके जा रहे लोगों के पास, बता रहे देखो कितना अप्रिशिएट किया लोगों ने, अरे मेरे को पैसा दो। ये स्ट्रगल किया है प्रभुपाद जी ने, ये पैसा जुटाया है ना। हमें तो किताब के बदले पैसा मांग रहे हैं, किताबी बांटते हैं, कुछ दे रहे हैं ना हम बराबर। किताब दे रहे उसका पैसा मांग रहे हैं, हम तो हवा में पैसा नहीं मांग रहे कि हाँ हाँ हमारा बहुत अच्छा गीता है, देखिए इसका रिव्यूज देखिए, आप दे दीजिए पैसा अभी, तो बाद में फ्यूचर में कभी आपको ला के देंगे, ऐसा भी। प्रोफा जी तो ऐसा लोगों को बता रहे हैं हाउ मच स्ट्रगल होता होगा। यहाँ पे तो सिर्फ पर से नाम लिखे हुए हैं। प्रोपा जी को कितने लोगों का रिजेक्शन होता होगा और कितने लोग के साथ जाना होगा, और एक दो लोग फिर कुछ लक्ष्मी देते होंगे, और 4-5 हज़ार रुपये जमा हो रहे हैं बराबर के। तो इसलिए हमको इंस्पिरेशन आना चाहिए कि ऐसे हमको करना क्या है, हमको बताइए होना क्या है। सब कुछ हाथ छूट के मिल रहा है, तो गीता उठानी और देना है, जस्ट एक ट्रांसपोर्टर है बस हम, पूरा कुछ नहीं। उसको क्या बोलते हैं, वो आता है डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय का भी काम होने करना है बस। रिसीवर रेडी है ना, और सेंडर भी रेडी है, बस उसको पैकेजिंग करके उन लोगों को पहुंचाना है बस ग्राहक के सामने, ग्राहक के पास। दोनों पार्टी रेडी है, रिसीवर भी रेडी है, दे दो भाई, और सेंडर भी रेडी है। और उसमें भी हमारा क्या हो जाता है, गुस्सा नहीं आता कभी। आप लोग तो भक्त कर रहे हैं जगन्नाथ सकापुर जी का, दोपहर को मेरे को फोन आया था कि 2 स्कूलों को उन्होंने भागवतम सेट के लिए मना लिया है, और वो लोग उसका कुरियर चार्जेस भी पे करने को तैयार है। तो वो डायरेक्ट अभी कुरियर वाले से बात करेंगे, सोमवार को मंदिर में जाएगा, वो दोनों बॉक्स उठाएगा, कुरियर में डालेगा, डायरेक्ट स्कूल में चला जाएगा भागवतम। तो जी कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना आग लगा है उनको प्रीचिंग का, इतना महाराज का संग लिया है प्रभु जी ने दिल्ली में, इस कारण प्रभु जी को बहुत ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली हमारा खानदानी बिजनेस है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई और फैमिली बिजनेस। देखिए जैसे फैमिली में होता है ना, कोई उसका नातू होता है, तो नातू को आजोबा देखता है ना, ग्रैंड फादर देखता है क्या, कचर 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 गले पे बैठ के नोटा गिन रहा है बराबर कि नहीं। तो जो ग्रैंड फादर खुश होते हैं ना, क्या वाह हमारे खानदान में निकल गया, ये निकल गया असली असली हमारा खानदान का वारिस बराबर कि नहीं। तो खानदान, अब दादाजी क्या होते, खुश होते कि नहीं जब देखते हैं अपने नातू को गले पे बैठा है, हाँ, बराबर इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, बराबर गले पे बिल्कुल बैठा है, और कचर 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 नोटे गिन रहा है। दादाजी बहुत खुश होते, बोलते हाँ निकल गया खानदान का असली सुपुत्र। वैसे ही हमारी गुरु शिष्य परंपरा हमको देखती है, प्रभु जी बहुत खुश होती है, ऐस देख ये खानदान में सही भक्त निकला है, जो खानदान का बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। जब हम हमें गीता लेके बाहर निकलते हैं, रास्ते में लोगों को बांटते हैं, भागवतम बांटते हैं, प्रयास करते हैं प्रचार करने का, पूरी गुरु शिष्य परंपरा फेस्टिवल मनाती है। ये सही हमारा नातू निकला, जो घर में नहीं सो रहा है, कि नहीं, घर में तंगड़ी उठा के नहीं सो रहा है,
निकला है बिजनेस में बाजा हमारा जो खुद फैमिली बिजनेस है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर स्पेशली दादाजी फिर बहुत ब्लेसिंग देते हैं इसको, नातू को, इसे बहुत प्रेम करते हैं उस नातू का। अपने जब मृत्यु शैया पे भी रहते तो किसको बुलाते हैं? वो मेरे जब गले पे बैठा नातू को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ उसको लास्ट टाइम में, मेरा काम आगे बढ़े। कैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा को याद करती है फिर कि ये सही भक्त है। जैसे हनुमान जी के केस में हुआ ना, वो दो लिस्ट थी राम जी के पास। बोले कौन कौन भगवत धाम जाएगा, या मृत्यु के समय कौन कौन राम जी को स्मरण करेगा, उसकी लिस्ट बनाई थी किन्होंने? भगवान राम ने, कि कौन कौन भक्त भगवान राम को जब उनका शरीर छोड़ेगा तो कौन कौन याद कर पाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला है अंत काले मामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम, कलेवरम से मुक्त होते होते जब कोई व्यक्ति मेरे को स्मरण करता है तो वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, ऐसा करके भगवान ने बोला है भगवद गीता में। तो लिस्ट बनाई थी भगवान राम ने। तो क्यूरियोसिटी वश हनुमान जी एक दिन वो लिस्ट चेक करने के, कि मेरा नाम तो है ना, कंफर्म करने के लिए गए तो देखा क्या नहीं, उनका नाम ही नहीं है उधर। बोले रे, ऐसे कैसे हो गया? भगवान को स्मरण करने के तो मेरा नाम ही नहीं है। तो उल्टा चेक किया, सीधा चेक किया, चेक किया ना, ये एच लेटर से क्या बोलते हैं उसको, अल्फाबेट से चेक किया ना। और फिर हनुमान केसरी लाल, केसरी नंदन क्या है, कुछ तो सरनेम होगा उनका, कौन सुध जो भी है ना, सरनेम विजय से चेक किया पूरा में। फर्स्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम सब चेक किया, लिस्ट में नाम ही नहीं है। भगवान जाके पास बोला, भगवान शायद थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक हो गया क्या, हमारा नाम नहीं दिख रहा है जरा लिस्ट में, नहीं क्या? कुछ गलती हो गई तो बताइए, हम सुधार लेंगे उसको, है ना, जब हमें कुछ कमी होगी तो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये लिस्ट जनरल है, जनरल कोटे की लिस्ट है। ये वीआईपी कोटे की लिस्ट दिखाता हूँ तुम, तुम्हारा वीआईपी कोटे की लिस्ट में तुम्हारा पहला नाम है। बोले, वो कौन सी लिस्ट है? बोलेंगे, बोले भगवान ये ऐसी लिस्ट है, इसमें वो भक्त स्मरण करे ना करे, मैं उसको जरूर उसके मृत्यु के समय स्मरण करूँ। मैं खुद उसको पर्सनली जाकर स्मरण करूंगा उसको। उसमें फर्स्ट नाम किसका था उस लिस्ट में? हनुमान जी का था। तो वैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा हमको स्मरण करती है प्रभु जी, जब हम ये प्रचार कार्य जो करते हैं, तो उन्होंने खून पसीना लगाया इसको करने के लिए, ऐसे करके ना। ठीक है, यहाँ पे प्रभु जी हम विराम देते हैं। अभी आप भक्तों से सुनना चाहूंगा मैं, आपके रियलाइजेशन, आपके कुछ ना, आप शेयर कीजिए आपके कुछ प्रसंग, आप लोगों से सुनना चाहूंगा मैं, मेरे लिए कुछ इंस्पिरेशन, कुछ जैसे जगन्नाथ सखा प्रभु जी, हमारे मनोज पाटिल प्रभु जी, बहुत सुंदर उस दिन वो टॉक शो कर रहे थे, सुना पूरा उनका जो भी जितना भी उन्होंने भेजा था। वो क्या बोलते हैं उसको, वाद विवाद संवाद जो हुआ था, मॉडर्न एंड, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी एक्टिवली कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा। वहाँ पे यूथ प्रीचिंग का भी ड्राइव चल रहा है उनके, दिंडोरी इस्कॉन दिंडोरी में। और आप लोग भक्त भी अपने हर जगह पे कुछ ना कुछ भक्ति में कार्य कर ही रहे हैं। तो आप शेयर कीजिए कुछ आपके एक्सपीरियंसेस भक्तों को इंस्पायर करने के लिए, कोई भी शेयर कर सकते हैं। या एक भक्त का नाम लो, हाँ, यश प्रभु जी, मनोज प्रभु जी है, अरे प्रभु जी जगत प्रणाम। नाम प्रभु जी। अच्छा, अभी एक शेयर करना चाहूंगा। जगन्नाथ सका प्रभु जी की जय हो पहले तो। जय जय। उनकी हेल्प से हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। प्रभु जी ने आई थिंक डिस्पैच भी कर दिया ना प्रभु जी, बुक्स वगैरह। हाँ हाँ, भेज दिया। हाँ, प्रभु जी ने हमारे लिए एक सेट डिस्पैच कर दिया है अभी। तो मैंने हमारे यहाँ जो मेंटर है हमारे वैकुंठ प्रभु जी, उनसे बात किया था कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, हमारे एक डिवोटी है, वो हमें हेल्प करेंगे करके यूथ प्रीचिंग में। तो उन्होंने बोला आप सबसे पहले एक सेट मंगा लो, फिर हम लोग देखेंगे हम इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करके। तो प्रभु जी ने मैंने जैसे बोला, उन्होंने तुरंत अभी सेट रेडी करके मुझे डिस्पैच भी कर दिया। बीच में मैं उनको हम्म। पूछना भी, फॉलो अप करना भूल गया, लेकिन प्रभु जी ने छोड़ा नहीं, सामने से मुझे बोला प्रभु जी आपको मैं सेट क्या क्या भेजूँ क्या नहीं भेजूँ आपको। मैं बोला प्रभु जी एक सेट सभी का भेज दो।
तो हम लोग उसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भी प्रयास करेंगे थोड़ा यूथ प्रीचिंग में। आप लोगों का प्रभुपाद जी की कृपा हो तो हम लोग भी करेंगे, होपफुली हम लोग भी सक्सेसफुल हो थोड़ा बहुत। एक भक्त भी बन जाए तो बहुत है हमसे। वेरी नाइस। हरी बोल हरी बोल। मनोज पाटिल प्रभु और उनको हेल्प करने वाले हमारे जगन्नाथ कथा प्रभु की जय। और कुछ बात कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? बहुत सुंदर। ओके। कुछ भक्त तो नहीं आए हैं पहली बार, हमारे महेश राजगुरे प्रभु। आप लोग को शायद ही पता होगा महेश राजगुरे प्रभु। कितने लोग जानते हैं महेश राजगुरे प्रभु जी के बारे में? कि जगन्नाथ कथा प्रभु जानते हैं, नवीन निमाई प्रभु जानते हैं। तो महेश राजगुरे प्रभु हमारे चॉइस जलगांव के पास आउट स्टूडेंट है, केवल प्रभु भी जानते हैं। और प्रभु जी शुरुआती दिनों में उनको घर से थोड़ा अपोज था भगवत भक्ति करने के लिए, चॉइस पे जब रहते थे। फिर बहुत स्ट्रगल करके, जुगाड़ तिगड़म करके चॉइस में आते थे, भक्ति करते थे। और फिर जब जॉब में गए तो फिर अच्छे से पिकअप कर लिया। और हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। एक दिन मैं नागपुर से जा रहा था, तो मेरे पास कुछ प्रसादम की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने महेश राजगुरे प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी कुछ प्रसादम कर सकते हैं क्या? हाल तो प्रभु जी के पास भी कुछ ऐसा सेटअप नहीं था कुकिंग करने का। फिर प्रभु जी गए मंदिर, इस्कॉन नागपुर मंदिर गए। वहां से पूरा एक थाली बना के पूरा पैकिंग करके प्रसाद, और रेलवे स्टेशन आके रुके वहां पे। फिर मैं आया, फिर रेलवे स्टेशन में बैठ के प्रभु जी ने मेरे को पूरा प्रसाद खिलाया पूरा बैठा के। फिर मैं आगे की जर्नी किया है। ऐसे करके प्रभु जी सेवा करते हैं जब भी मौका मिलता है। तो इसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि अभी आएंगे बॉम्बे में, कभी थोड़ा एक दो दिन के लिए समय बिताएंगे भक्तों के साथ। बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए प्रभु जी के। यस प्रभु जी। ठीक है। एक्चुअली प्रभु जी क्या है, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना मेरा, एक ओल्ड वाले नंबर पे बना है, तो वो मैं कभी खोलता नहीं। आज प्रभु जी का फोन आया करके मैंने देखा कि कुछ उधर तो है कि नहीं है, तो वो देखा तो ओके, बहुत सारे मैसेज है वहां पे। आप एक काम कीजिए, ये मेरा नंबर तो है ना आपके पास? यस यस प्रभु जी, अभी प्रभु जी को भी मैंने नंबर दे दिया है। वो ऐड कर देंगे तो कंटिन्यू, मतलब जब भी कुछ रहा तो आ जाए। ऐड कर देंगे। जगन्नाथ प्रभु का नंबर दिया ना आपने? नहीं, नवीन निताई दास प्रभु जी को दिया था। नवीन निमाय प्रभु जी को भेजा है ना? नवीन निमाय प्रभु जी, मुझे वो नंबर शेयर कर दीजिए, मैं उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है? नया नंबर से ऐड करेंगे। ठीक है, केवल प्रभु आप यू आर ओके? हमारे हाँ, हरे हमारे कृष्ण। स्पेशल हरे हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु, आई एम इन हैदराबाद प्रभु, इन गीता लाइफ। प्रभु जी भी हमारे जलगांव चॉइस के पास आउट प्रभु जी है। ये भी प्रभु जी ड्यू टू सम एकेडमिकल, क्या बोलते हैं, ये था प्रभु जी का थोड़ा एकेडमिक स्ट्रगल था उस टाइम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे। इस कारण थोड़ा सा पढ़ाई है, इसीलिए कभी चॉइस में रहते थे, कभी बाहर घूम करते रहते थे, पर रेगुलरली आते थे प्रभु जी। चॉइस में रहे तो चॉइस में सेवा करते थे। और कुछ एक एक डेढ़ साल बाहर भी रहे, रेगुलर भक्तों का संग कर रहे थे, मॉर्निंग प्रोग्राम में आते थे। ऐसे करके प्रभु जी अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद प्रभु जी को गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। तो कुछ समय फिर औरंगाबाद की इस्कॉन औरंगाबाद में रहे, कुछ समय मुंबई में रहे, मुंबई में जुहू में। और कुछ 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई किए। और फिर अभी प्रभु जी यहाँ पे हैदराबाद में उनको अच्छा नौकरी लग गया है। और भगवान की कृपा से अच्छा लक्ष्मी भी आ रहा है, घर वाले खुश है। और वहाँ पे गीता लाइफ में रहते हैं हमारे जो गीता लाइफ, जो एक्चुअली ओरिजिनल गीता लाइफ जहाँ से चालू हुआ उस सेंटर में रहते हैं। और हमेशा यात्राओं के लिए टाइम निकालते हैं। हमारे केवल प्रभु है। और ये तेजस प्रभु हमारे स्पेशल
कितने लोग जानते हैं तेजस प्रभु को? केवल को जानते हैं, सिर्फ केवल को जानते हैं। ये ना, प्रभु जी जानते, जगन्नाथ ठाकुर जानते, जलगांव के बहुत लोग जानते होंगे। तो प्रभु जी ये गवर्नमेंट कॉलेज में थे हमारे जलगांव में, और प्रभु जी भी चॉइस में रहते थे। तब बिल्कुल ऐसे से क्या बोलते जो थे, ये तो बहुत खुले से थे एकदम से। अभी मैं देखा कुछ साल पहले प्रभु जी को, तो अभी बहुत बड़े दिखते हैं, अच्छे है ना, जगन्नाथ सकाफो जैसा हेल्थ हो गया उनका अभी ऑलमोस्ट, है ना। प्रभु जी भी काफी समय से अभी हिमायत अभी की संपर्क में है। स्पेशली अध्यक्ष खुना प्रभु जी के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं। और आए भी थे अभी पिछली बार, मंदिर में आए थे दर्शन करने, तो उनका भी स्वागत है। और बाकी विष्णु पुराण प्रभु जी, नवीन निमाय प्रभु जी, किरण बंसोड़े प्रभु जी हमारे जलगांव के पास आउट है, अभी लेटेस्ट बैच। प्रभु जी भी रेगुलरली बहुत हमारे आते हैं। सबका स्वागत है प्रभु जी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आ रहे हैं रेगुलरली। इतने इतने दिनों के बाद मुझे आज मौका मिला है आप सभी से संपर्क करने का, क्योंकि मैं बिजी था, प्रभु जी प्रोग्राम करते थे, मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलता था। मौका मिलता था मैं आपसे, मैं एक तो ट्रैवलिंग में रहता था, या कैसे भी करके मैं लास्ट में 5 मिनट में जुड़ता था। आज पहली बार प्रभु जी ट्रैवलिंग में है, तो मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। बहुत अच्छा लगता है, आप भक्त लोग जितने पुराने भक्त लोग आते हैं। और एक विनती है, अभी 14-15 तारीख को हमारा एनिवर्सरी है, आप लोग आइए जरूर मंदिर में दर्शन के लिए, 1-2 दिन का छुट्टी निकालिए, 2 दिन का आइए, बहुत अच्छा संग मिलेगा सबको भक्तों का, आप लोग को देख के और आप लोग से एसोसिएशन करके तो आनंद आएगा। ठीक है, यहाँ पे विराम देते, टाइम हो गया हमारा। शिला थैंक यू। प्रभुपाद जय, शिला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सभी भक्तों की जय, समवेत सभी भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच गुरु जी फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनोरम गोरख गुरु जी को हम सब थैंक यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे।